hyper carnivore. Why you use this term and what it means? The meat eaters are called carnivores. आप every day single meal लेते हो Yeah. and 70% of that is with meat. It's not 70%. Mine is actually 90-95%. The interesting thing is fibers cause constipation. Fiber cause constipation. Cause constipation. I haven't seen any patient who actually gets better after taking fiber. What I know कि विराट कोहली is a pure vegetarian. How do you know they are vegetarians? वो झूठ बोल रहे हैं. They are frauds. बीकानेर में tug of war हुआ था Yeah. between Indian old ladies Yeah. and foreign old ladies, and of course Indian, we know that Indian women lost. So क्या इसी context की वजह से आपने strong statement पास किया था और खाओ Indian vegetarian? Right. वो सिर्फ टग ऑफ वॉर में वो नहीं हारे, सारे स्पोर्ट इवेंट में हारे. Again, this 4 liter of water every day. सब नॉनसेंस है सब. Difficult हुआ है कभी कोई client को convert करने में? नहीं, मुझे डिफिकल्टी नहीं होती क्योंकि कन्वर्ट वो हो के ही आता है मेरे पास. Welcome, Dr. Kishle, to the next page. We're very excited to have you because there's a lot of research मैंने किया है आपके आने से पहले, and we were hoping that we're going to burst a lot of myths and have a lot of knowledge around this metabolism because you're titled as a metabolic doctor. So मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे ये है कि metabolic doctor, is it really a terminology for a doctor or something is that has been given to you? No, I coined myself actually all this term for me because I'm practicing metabolic medicine. I'm utilizing diet, nutrition for my patients to help them recover from their metabolic illness. So that's why I coined this term for myself, metabolic doctor. Metabolic doctor करके कोई as a doctor होता नहीं है, but because you are practicing, you coined this term. Right. Entirely मेरी practice जो है ना वो आपके इस metabolism के around है. Means it's not like I'm not prescribing any medicines for my patients, but my goal is to de-prescribe. Deprescribe. De-prescribe. Deprescribe what? De-prescribe medications. Like because most of the patients are taking 10 to 12 pills on an average. Patients who are coming to me, they already take 10 to 12 pills. तो मेरा काम होता है primarily कि उनकी medicines का load मैं कम करूँ as a doctor. और जब आप लोड कम करते हो मेडिसिन कम हो जाती है उनकी क्योंकि आप मेटाबॉलिज्म को फिक्स कर रहे हो डाइट को बदल कर, तो इसलिए आप मेटाबॉलिक डॉक्टर. Oh. दैट्स ऑल. And एक और टर्मिनोलॉजी मैंने आपके साथ जुड़ी हुई देखी, हाइपर कार्निवोर. नो, why you use this term and what it means? कार्निवोर इन जनरल अगर हम देखें डेफिनेशन तो आप ये मानते हो कि कार्निवोर वो होते हैं जो मीट खाते हैं, इनकी मीट ईटर्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. हाइपर कार्निवोर मीन्स if any animal eat meat more than 70% of their total daily calorie intake in terms of energy wise. Okay. So you have to be on meat above 70%. Every single day. Every single day. Yeah. More than 70%. More than 70%. Okay. So अगर जो कोई भी जानवर है जो आपका 70% से ज़्यादा एनर्जी मीन्स टोटल एनर्जी का वो नीड अपने मीट से डिराइव कर रहा है मोर देन 70%, तो वो हाइपर कार्निवोर होता है. रिमेनिंग 30% आपका प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स भी इंक्लूडेड होगा उसमें, बट 70% फ्लैश होगा एनिमल का उसके खाने में. बट ये ह्यूमन बॉडी के लिए पॉसिबल है मोर देन 70% मीट लेना, डाइजेस्ट करना? डजंट दैट इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी? डज इट मेक देम लेथार्जी? बिकॉज हम जब मीट की बात करते हैं हमें इवेंचुअली कोलेस्ट्रॉल, एंड स्पेशली आप तो रेड मीट प्रमोट करते हो, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट अटैक विच लीड्स टू हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें थॉट्स आ जाती है. ये सारे मिथ्स हैं एक्चुअली. या प्रॉब्लम क्या है कि रेड मीट इज़ द रियल फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स. वही फूड है हमारा. अब जब वो फूड हमारा रियल है, अब क्यों रियल है आप पूछोगे क्यों रियल है? मैं कहता हूँ कि मैं रेड मीट खा रहा हूँ, मतलब वेरी ह्यूज अमाउंट में खाता हूँ रेड मीट, और दिन में बस एक बार खाता हूँ. इंटरेस्टिंगली मैं दिन में बस एक ही बार खाता हूँ, कोई स्नैक्स नहीं लेता हूँ, कोई बेवरेजेस नहीं लेता हूँ. वो तो हमने देखा. या और मुझे भूख नहीं लगती, हंगर नहीं आता, मुझे कभी स्नैक्स करने का मन नहीं करता, कभी कोई क्रेविंग नहीं होती भाई. और आपकी हेल्थ एक्चुअली इससे इम्प्रूव कर जाती है क्योंकि बार बार खाना हेल्दी नहीं होता, कम खाना हेल्दी होता है. अगर आपका न्यूट्रिशन सही है, अगर आप बार बार नहीं खा रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग आपकी कम है, तो वो बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए.
तो मीट जब आप खाते हो तो आपके बॉडी का, आपका जो सोल पर्पस होता है ना न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन आप क्यों करते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि आपकी बॉडी में फूड, आप जो भी डाइट लेते हो उससे आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट होना चाहिए। वो न्यूट्रिशन मीट से हो जाता है कंप्लीट एंटायरली, इवन इफ़ यू डोंट टेक एनीथिंग एल्स। आपका मीट आपके टोटल नॉरिशमेंट को कंप्लीटली फुलफिल करता है। किसी भी न्यूट्रिएंट में आप डेफिशिएंट नहीं होगे सिर्फ और सिर्फ रेड मीट खाकर। वाओ। एंड आप एवरी डे सिंगल मील लेते हो या and 70% of that is you meat. इट्स नॉट 70%, माइन इज एक्चुअली 90-95%। And then what about the amount of fiber and carbs जो usually हम सुनते हैं डॉक्टर्स से भी, जो अगर आप कोई डॉक्टर को कंसल्ट करने जाओ तो यही सुनने मिलता है, और न्यूट्रिशनिस्ट को पूछो तो भी यही मिलता है, right? That you need to have a certain amount of fiber, you need to have certain amount of carbs, and then of course protein. So I'm assuming your meat is protein. या राइट। सो इन टर्म्स ऑफ मैक्रोज अगर हम देखें ना तो आपका वी हैव 3 मैक्रोज, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट इज कंप्लीट नॉन एसेंशियल, इट्स अ कंप्लीट नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपकी डाइट में होना नहीं चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए। बट आप उससे कंप्लीटली अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ आप खाओगे जो प्लांट बेस्ड होगा। क्योंकि 100% कार्निवोर होना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर देयर एंटायर लाइफ। तो आपको करना ये होता है कि आपकी डाइट में मोस्टली अगर आप मीट और एग्स खाते हो और रिमेनिंग 10 to 20% का आप अगर ये लेते हो प्लांट बेस्ड डाइट भी, प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स भी लेते हो अपनी डाइट में, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, कभी ख़राब नहीं होती है। इन जनरल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं होगी, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट वो आपके लिए एनफ होता है। अगर आप ऑलरेडी किसी मेटाबॉलिक डिजीज से सफ़र कर रहे हो देन वो एज अ प्रोटोकॉल काम करता है आपके लिए। Okay. और मैक्रोज में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको लेना नहीं, अब बचा हमारे पास 2 मैक्रोज, प्रोटीन एंड फैट्स। फाइबर कोई मैक्रोज होता नहीं है, उसे ज़बरदस्ती हमने ऐड किया है, क्योंकि फाइबर भी एक सब क्लास है कार्बोहाइड्रेट का ही, वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही आता है फाइबर। द ओनली डिफरेंस इज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय अस, डाइजेस्टेबल नहीं होता वो। Okay, you're completely saying something Yeah. different. आज तक मैं जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई हूँ या डाइटिशियंस के पास गई हूँ, not only me, even my elders, somebody who's in the age of 55, 60 plus, and even when I was in the age of 24, 25, every damn nutritionist ने बोला कि आपको फाइबर लेना है, because fiber helps you absorb one, the nutrient, the protein that you're taking, and second, it helps in, not being constipated. And आप एकदम contradictory statement दे रहे हैं. Actually, the interesting thing is if anything fibers cause constipation. Fiber cause constipation. Cause constipation. वो isabgol doesn't also help acts you. like a fiber, right? So a lot of people who suffer constipation has been asked to take isabgol Yeah, and their constipation worsens. or husks to be. Exactly. And after that what happens? Constipation उनका खराब होता है. Not a single patient in my practice, I haven't seen any patient who actually gets better after taking fiber. Not a single patient. फाइबर लेने से आपका कॉन्स्टिपेशन वर्सन होगा, But फाइबर डाइजेस्टेबल नहीं है। फर्स्ट थिंग, फाइबर डाइजेस्टेबल नहीं है, आपके पास एंजाइम नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। इवन जो रिमिनेंट मैमल्स होते हैं, गोट, काउज, वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते फाइबर। बैक्टीरिया का काम होता है उसका फर्मेंटेशन करना, एंजाइम उनके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। बट उनके पास गट का जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है, इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाइबर को टॉलरेट कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते। हमें गैस, ब्लोटिंग, ये सब होना शुरू होता है। जब हम डाइट की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक की बात करते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म। यूजुअली हमने आज तक यही अंडरस्टैंड किया, मेटाबॉलिज्म इज फैट बर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। अ गुड मेटाबॉलिज्म मीन्स you can eat anything and still burn fat and look thin, right? So मतलब यही है एग्जैक्टली, और इज इज मोर इन डेप्थ अराउंड मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म में ना आपका बहुत कुछ आता है, वो एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है मेटाबॉलिज्म। और जिस पार्ट की आप बात करो, जिस एस्पेक्ट की, वो मेटाबॉलिक रेट की बात है कि अगर मेटाबॉलिक रेट हमारा स्लो डाउन हो जाएगा तो हम वेट गेन करने लगेंगे, और अगर हमारा बहुत फास्ट हो जाएगा तो हम वेट लूज़ करने लगेंगे। इसलिए थायराइड का लेवल आपका बढ़ता है अगर थायरोक्सिन हार्मोन का ब्लड में, तो आप वेट लूज़ करते हो, फैट लॉस भी होता है, मसल लॉस भी होने लगता है। और अगर आपका थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल
ड्रॉप करता है तो आप वेट गेन करते हैं। तो वो तो रेट की बात हो गई, रेट की वजह से वो चेंज आ रहा है, और वो चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि थायराइड हार्मोन्स में चेंज आ रहा है। लेकिन वो थायराइड हार्मोन्स में क्यों चेंज आया? क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आया था। मेटाबॉलिक रेट में नहीं आया था, मेटाबॉलिक रेट में डिस्टर्बेंस तो बाद में आया जब आपके थायराइड हार्मोन्स में चेंज आया। थायराइड हार्मोन्स में क्यों चेंज आया? वो भी मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। पूरा एंटायर वो केमिस्ट्री है आपकी बॉडी के अंदर, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो आप फूड खा रहे हो, वो फूड कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी बॉडी को सेल्यूलर लेवल पे, तो वो सारा कुछ आपका मैटर करता है, और वो पूरा एंटायर वो पूरा मेटाबॉलिज्म का ही पार्ट है। वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस और फैट लॉस। तो आपकी जो केमिस्ट्री है वो फूड से कैसे बदलती है, इंटरनल केमिस्ट्री, वो पूरा सब कुछ मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। So, अगर simply put करें, or is somebody who wants to make their life healthy, Yeah. boost metabolism, and of course have a good gut and intestinal health, तो क्या है डाइट फॉलो करना चाहिए? हाइपर कार्निवोर। So, what one routine should look like from morning to evening, if you have to advise? हाइपर कार्निवोर डाइट में तो पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी डाइट में, क्योंकि हाइपर कार्निवोर आप बोल रहे हो, तो 70 to 80% एनिमल का फ्लैश होगा, मीट होगा, और एग्स भी हो सकते हैं उसके साथ साथ। तो एग्स एंड मीट को लेकर के आप 70-80% बोल रहे हो, ठीक। और अगर आपको गट के सिम्टम्स हैं तो रिमेनिंग 20% आपका प्लांट्स नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि फिर फाइबर जाएगा आपकी डाइट। तो आपका जो फर्स्ट मील होगा, अगर हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं और आप लेते हो ब्रेकफास्ट, तो मैं बोलता हूँ आप होल एग्स लो, वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि एग्स को प्रिपेयर करने में टाइम नहीं लगता, और मॉर्निंग में मीट को बनाना थोड़ा मुश्किल भी है, लाना, वॉश करना और फिर वो सब करना, क्योंकि काम पे भी जाना होता है। तो बेटर है आप होल एग्स लो, 4 to 5 एग्स, वो डिपेंडिंग ऑन योर सैटिस्फैक्शन मीन्स और हंगर क्यूज वगैरह वगैरह, जो भी आप जितना खा सकते हो उतना खाओ, लेकिन आपको एग्स से स्टार्ट करना होगा फर्स्ट मील। एग्स के साथ आप डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ यूज़ कर सकते हो, बटर हो गया, चीज़ हो गया, और जो भी आपको कुछ और भी आपको चाहिए। और एग्स को आप बना सकते हो, मत नॉर्मली थोड़ा सा ऑनियंस डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मॉल अमाउंट में। और अगर स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गैस हो रहा है, तो ऑनियन भी बंद करना पड़ेगा पूरा, तो फिर प्लेन एग्स खाना पड़ेगा। और डेयरी कंज्यूम कर रहे हो, और डेयरी के बाद भी आपको ये ब्लोटेड फील हो रहा है, फूड फील कर रहे हो, तो आपको डेयरी भी बंद करना पड़ता है, स्पेशली चीज़। तो बहुत स्ट्रिक्ट, इसे हम एलिमिनेशन डाइट बोलते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम की जो सिवियरिटी है ना, वो आपको डिसाइड करेगा कि आप कार्निवोर डाइट कितने परसेंट में आप बेटर होगी, 70%, 80%, 90% और 100%। तो वो मैं पेशेंट टू पेशेंट मैं उसमें गाइड कर रहा हूँ, या बट डेफिनेटली आपको 70% के ऊपर तो रखना ही रखना है, इफ़ यू वांट टू मेक योर सेल्फ बेटर। वो उसमें कोई वो नहीं है, नॉन नेगोशिएबल, वो आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। And then आपकी- how the day progresses with this diet? फिर फर्स्ट मील आपने लिया, आपकी सेडेटी बेटर होगी इस डाइट पे, क्योंकि प्रोटीन एंड फैट्स है, तो आपका फुलनेस रहेगा, क्योंकि इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड फैट्स एज कम्पेयर टू डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। फिर अब क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट मील होता है, नॉर्मली आप देखेंगे ट्रेंड क्या है, ट्रेडिशन ये है कि आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच से पहले फिर कुछ खाते हो, ये हैबिट है। कहीं पे भी आप कुछ काम कर रहे हो तो वो टी एंड कुछ बिस्किट्स ला के देंगे, वो आप ले लेते हो, स्नैक्स भी ले लेते हो। फिर लंच में वही दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप ले जाते हो लंच में, वही होता है नॉर्मल खाना, वेजिटेरियन फूड जो हम बोलते हैं, हेल्दी वेजिटेरियन फूड। और वो खाने के बाद फिर आप शाम को फिर 4-5 के अराउंड फिर आप कुछ स्नैक्स लेते हो, राइट। और उसके बाद फिर घर पे आते हो, डिनर करते हो, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 6 टाइम्स खा रहे हैं वो, हाँ. राइट। अब इसमें क्या होगा, आप जब एग्स खाओगे फर्स्ट मील में, तो आपको बीच में स्नैक्स करने का मन नहीं करेगा, आप डायरेक्टली लंच लोगे, फिर लंच के बाद डायरेक्टली डिनर लोगे, तो एटलीस्ट आपका स्नैक्स इवेंट जो था वो खत्म हो गया इतना करने पे। और लंच में आप अगेन आप फिर पूछोगे कि लंच में फिर क्या लेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आप रोटी चावल ले जा रहे थे, आप रोटी चावल मत दीजिए, आप लंच अगर घर पे आके कर सकते हो तो कर लो, और नहीं तो आपको फिर एग्स ले जाना पड़ेगा, अगर मीट नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि स्टिग्मा भी है, मीट हम खा रहे हैं, सिर्फ मीट खा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले शेयर नहीं करेंगे या बैठेंगे नहीं मेरे साथ अगर मैं मीट खाता रहूँगा, तो ये सभी प्रॉब्लम है। तो मैं बोलता हूँ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, आप उससे बेटर है फिर आप ये करो कि आप एग्स ले जाओ। तो वो पेशेंट के साथ क्या सिचुएशन है उसमें भी फिर मैं वो उनके लिए फ्रेम करवाता हूँ, उनकी जो डाइट होती है। थोड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग होता है। इंडियन कल्चर में इस डाइट को प्रमोट करना बहुत डिफिकल्ट है। Absolutely. प्रैक्टिकली लोगों को लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है। मैं बोलता हूँ फिर डिजीज़ को बेटर करना भी
फिजिबल नहीं हो। सो डॉक्टर किशने, अब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है. डाइट हैज बिकम लाइक एन आइडेंटिटी, यू नो, लाइक some people say I'm an vegetarian, which means they don't eat anything non-veg, but they eat eggs. Then there are hyper carnivore like you. Then there are people pure vegetarian, जो बिल्कुल ही नहीं लेंगे. And then there are vegans. And then there are over lacto. तो मुझे पता ही नहीं है over lacto क्या है. But what is this all fad around diet and making them feel that this is me, this is who I am? ये बेसिकली मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक खुद को आइडेंटिटी देने के लिए ये लोग कुछ एक डाइट कल्चर लाते हैं, फैड कल्चर लाते हैं, क्योंकि और ये एक अच्छा तरीका भी, एक एक्टिविस्ट बन जाता है और फिर ये सब कि मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, राइट। तो वो एक खुद को, ये सारा प्रोपेगेंडा के अंदर ही आता है। ये सारी जो भी डाइट होती है, कोई भी एक स्पीशीज़ है उनकी डाइट सिमिलर होगी। ह्यूमन बींग्स एक ही स्पीशीज़ है, हमारा बॉडी का डिज़ाइन एक ही है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके लिए वेजिटेरियन डाइट सूटेबल है, आपके लिए कार्निवोर डाइट सूटेबल है। अगर कोई एक डाइट है किसी भी स्पीशीज़ का, तो एक ही डाइट है, राइट। आप गाय को नहीं बोलोगे कि जा करके तुम थोड़ा अंडा भी चाहिए, तो इस गाय को अंडा भी चाहिए, इस गाय को वो चाहिए। एक ही डाइट है ना। आप गाय को ले लो, डॉग्स को ले लो, कैट्स को ले लो, सभी की डाइट एक है। हमारी डाइट में ही इतना वेरिएशन होता है। कोई बोलता है हम वीगन हैं, कोई बोलता है हम हर्बीवोर्स हैं, कोई बोलता है हम ओमनीवोर्स हैं, कोई कार्निवोर बोलता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम कंफ्यूज हो गए, अब हम हैं क्या एक्चुअली, हमें खुद ही नहीं पता हम क्या है। तो इसलिए आपको अगर पता करना है तो आप सबसे पहले बीमार हो, राइट। Okay. हाँ, क्योंकि जब तक आप हेल्दी रहोगे आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप उसको खाते हुए हेल्दी हो, आपको लगेगा कि नहीं मैं सही हूँ क्योंकि मैं हेल्दी हूँ इस डाइट में। तो मैं कहता हूँ कि बीमार लोगों से पूछो एक्चुअल डाइट क्या होता है, ह्यूमन डाइट। तो बीमार लोग कौन होते हैं जो मेरे पास आते हैं? जो सारी डाइट को कर चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अब कोई डाइट बची है करने को, तो वो कार्निवोर डाइट। और किसी डाइट पे वो ठीक नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्निवोर डाइट पे ठीक होता है। तो आप इससे ये इन्फर कर सकते हो कि कौन सी डाइट ह्यूमन डाइट होती है। जिस डाइट ने आपको ठीक कर दिया, सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो गए, तो अब आप किस डाइट को बोलोगे ह्यूमन डाइट? कार्निवोर डाइट को बोलोगे या वेजिटेरियन डाइट को बोलोगे? ये मेरा क्वेश्चन है। आप हेल्दी किस डाइट को लेते थे? कार्निवोर डाइट। आपने इससे पहले सारी डाइट किया, किसी से आप बेटर नहीं हुए, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो आप किस डाइट को बोलोगे हेल्दी है? कार्निवोर डाइट को ही बोलो, ऑब्वियसली नहीं। तो ह्यूमन डाइट कौन सा हो? कार्निवोर डाइट। तो इसलिए कोई भी डाइट हेल्दी कौन सी डाइट है ह्यूमन बींग्स के लिए, उसके पहले आपको बीमार होना पड़ेगा, तभी ये प्रूव होगा। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जब प्रूव होगा विथ एवरी एनेक्डोट, तब जा करके वो अल्टीमेटली एक एज ए एविडेंस तैयार होता है कि हाँ भाई ये सारे लोगों पे कार्निवोर डाइट वर्क कर रहा है। ऐसे पेशेंट पे, मतलब आप बोल सकते हो रिफ्रैक्टरी पेशेंट से है वो, क्योंकि सारी चीज़ें फेल हो गई इस पे। So आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं? मेरे पास ऐसे ही आते हैं। मेरे पास वेजिटेरियन लोग आते ही नहीं है, मेरे पास वीगन वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड वाले लोग नहीं आते हैं। वो लोग आते हैं बट वो एक्स होता है, राइट। एक्स वेजिटेरियन हो जाता है मेरे पास आते ही। Okay. वेजिटेरियन नहीं आते, क्योंकि वो मेरे से कंसल्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें पता है कि अब मुझे मीट खाना है। डिफिकल्ट हुआ है कभी कोई क्लाइंट को कन्वर्ट करने में? नहीं, मुझे डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि कन्वर्ट वो हो के ही आता है मेरे पास। मेरे यूट्यूब वीडियो सुन के। तो मेरी लाइफ में एक्सेस बहुत है मेरे पास, एक्स वेजिटेरियन, नॉट एक्स गर्लफ्रेंड्स, बट एक्स वेजिटेरियन बहुत है। तो एक्सेस बहुत है मेरी लाइफ। तो वो सारे मुझे सुनते हैं पहले, और सुनने के बाद ही आते हैं। और सुनने के बाद उनको पता है कि डेफिनेटली दिस डॉक्टर मेक सेंस एक्चुअली, वॉट एवर ही। एंड उन्होंने चेंज देखा है अपने लाइफ में आफ्टर फॉलोइंग योर डाइट? मैक्सिमम लोग तो कंसल्ट बस इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर से एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर की डाइट को फॉलो करके मैं ठीक हो गया। वो सिंपली कंसल्ट करते हैं एक बार मेरे से बात करने के लिए, और वो बोलते हैं कि सर मेरा ये सब कुछ ठीक हो गया, मुझे कोई आपसे वो चाहिए नहीं था पर्सनल मेडिकल एडवाइस, बस सोच रहा था एक बार ठीक हो गया हूँ, आपकी डाइट को फॉलो करे तो क्यों ना आपसे एक बार बात करी। तो वो सिंपली कनेक्ट करते हैं एक बार, और अच्छा फील करता है, क्योंकि इतना कुछ चेंज आ गया उनकी लाइफ में, सब कुछ पूरा बदल गया उनका। वो लगता है कि चलो भाई एक बार डॉक्टर को थैंक्स दे देता हूँ। तो ये डाइट का कॉन्टेक्स्ट ही था जिसकी वजह से आपने जो बीकानेर में टग ऑफ वॉर हुआ था बिटवीन इंडियन ओल्ड लेडीज एंड फॉरेन ओल्ड लेडीज, एंड ऑफ कोर्स इंडियन, वी नो दैट इंडियन वुमेन लॉस्ट। सो क्या इसी कॉन्टेक्स्ट की वजह से आपने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास किया था, और खाओ इंडियन वेजिटेरियन? राइट। आप देखोगे सिर्फ टग ऑफ वॉर में वो नहीं हारे, सारे स्पोर्ट इवेंट में हारे हैं। तो जो पूरे उस फेस्टिवल में जो हुआ है, सारे डिफरेंट स्पोर्ट इवेंट हुए,
सारे में इंडियंस हारे हैं। ये सिर्फ टग ऑफ वॉर की बात नहीं, कबड्डी में भी हारा है। तो ये प्रैक्टिस का रीजन नहीं हो सकता, आपने सिर्फ मीट को इतना इम्पोर्टेंस प्रैक्टिस आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आप लथार्जिक हो, फटीग्ड हो आप। क्यों? क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट पे आओ। आपकी साइकोलॉजी को भी ड्राइव कौन कर रहा है? आपका फूड ही ड्राइव कर रहा है ना। अगर आप सुस्त दिखते हो, लाउजी हो, स्लीपी फील करते हो, तो क्यों हो? डाइट की वजह से ही है। आप डायरेक्टली आप ये बोल रहे हो कि भाई सिर्फ मसल मास कम होने से नहीं होता, स्किल भी चाहिए होता है। एक कमेंट भी आया था मेरे उस रील पे कि स्किल की भी बात होती है। तो स्किल क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक्टिव पर्सन नहीं हो, आप लेजी हो। इंडियंस आप देखोगे कोई भी एक्टिविटी में, किसी तरह के एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं होगा, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्ट है? साइकोलॉजी खराब हो गई है उनकी। तो आपकी साइकोलॉजी को ड्राइव करता है आपका फूड, और आपका फूड जब प्लांट बेस्ड डाइट होगा तो आप ऐसे ही रहोगे। तो ना आप स्किल डेवलप कर पाओगे, ना ही आपके पास मसल मास होगा, ना ही स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा? But I know कि विराट कोहली is a pure vegetarian. Carl Lewis is a pure vegetarian. Uh, Venus Williams, who've turned all vegetarian and some have actually turned vegan. So how are they maintaining their agility, their six-pack abs, and also stamina for, doing their best on the field? How do you know they are vegetarians? And this is what we are getting. Just because they are clean? Yeah, of course. इससे better क्या हो सकता है reason? नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। दे आर फ्रॉड्स, फ्रॉड एंड ऑल। एक बंदा जो ब्रांड को प्रमोट करता है, कोई ब्रांड से एसोसिएटेड है, और वो हर्बल लाइफ का ब्रांड है, तो वो उस ब्रांड को प्रमोट करते हुए नहीं बोलेगा ना मैं एग्स खाता हूँ या मीट खाता हूँ। सेलिब्रिटी लोगों को आप फॉलो मत करो इन चीज़ों के लिए, वो फ्रॉड होता है, लायस होते हैं वो। और ये विराट कोहली एग्स भी नहीं खा रहा, ये किसने देखा है? मैं तो यही कहता हूँ, कुछ तुम उसके घर जाके देखते हो, या मीडिया पर्सन कोई जा रहा है उसके घर को देख रहा है? जितने भी वेजिटेरियन हो गए, इवन वीगन जो बोलते हैं खुद को मैं वीगन, वो फिश भी खाते हैं, हाँ. सी फीड ही खाते हैं, बट क्योंकि उनको पता है ओमेगा 3 डेफिशिएंट हो रहा है वो, तो फिश भी खाते हैं। या इवन विटामिन B12 डेफिशिएंट होता है, दोनों चीज़ें उससे फुलफिल होती है, फिश खाते हैं। Supplement से भी तो fulfill हो जाए. नहीं होगा, काम नहीं करता सप्लीमेंट्स। अगर सप्लीमेंट से हो रहा होता वो फिश नहीं खाते, वर्क नहीं करता सप्लीमेंट्स। मैं सिंथेटिक सप्लीमेंट्स के भी अगेंस्ट हूँ। तो इसलिए ये जितने लोगों का नाम लिया ना आपने, ये सारे एक्चुअली वेजिटेरियंस हैं नहीं, ये बस कैमरा पे वेजिटेरियंस है, रियल लाइफ में ये खा रहे हैं। पता है ना, आप बहुत बड़े बड़े क्लेम्स या हमेशा ही करते हैं एंड वी आर सेइंग ये कैमरा पे बस है, मतलब कैमरा पे बोल रहे हैं मैं वेजिटेरियन हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मुझे मेरे से मैं एक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हूँ, और वो हर्बल लाइफ है। तो हर्बल लाइफ ब्रांड को मैं प्रमोट करूँगा, बोलूँगा मैं तो एग्स खाता हूँ, मीट खाता हूँ, कोई बात नहीं बनती है ना कुछ। तो इसलिए ऐसे लोग, और जनरली सेलिब्रिटीज़ के पास ब्रांड ये सब होते ही हैं, कोलैबोरेशन ये रहते ही हैं, किसी न किसी ब्रांड से ये लोग कोलैब में रहते हैं। तो ये लोग रियल चीज़ नहीं बोलेंगे कभी क्या वो कर रहे हैं, तो वो करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं ये लोग। आपका व्यू पॉइंट क्या है OMD डाइट की तरफ, वन मील डाइट प्लान की तरफ? मेरा व्यू पॉइंट, मतलब मैं फ्लेक्सिबल हूँ थोड़ा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सभी को ओमैड करना है, वन मील अ डे करना है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका फूड इनटेक आपको फुल रखता है नेक्स्ट 22 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए, तो आप ओमैड करो। लेकिन अगर आपको नहीं रखता है तो आप 2 मील्स अ डे भी कर सकते हो। तो इन जनरल मैं जिस डाइट को प्रमोट करता हूँ उस डाइट पे आप 2 बार से ज़्यादा खा नहीं पाते, पॉसिबल भी नहीं है नहीं जाता, भूख ही नहीं लगती आप। तो 2 मील्स अपने एक नॉर्मल रूटीन में रहता है, 2 मील्स अ डे। ओमैड वही लोग कर पाते हैं जो एक बार में खा लेते हैं बल्क में। जैसे मेरी हैबिट है, मुझे आदत है खाने की, ज़्यादा मैं खा लेता हूँ, और मैं उसके बाद मैं 30 आवर्स तक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिग्नल ही आता है भूख का 36 आवर्स के बाद नॉर्मली। मैं मतलब थोड़ा परेशान होने वाला सिग्नल 24 आवर्स तक तो थोड़ा सा किक करता है अंदर, बट लगता है चलो ठीक है इसको और खींच सकते हैं 8 आवर्स 10 आवर्स तक। तो 36 आवर्स के बाद मुझे ऐसा फील आता है कि अब भाई मुझे दे दो पीस खाना। लेकिन डॉक्टर कितना कंफ्यूजन हो गया, बिकॉज देयर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर, हर कोई इज बैकिंग इट विद साइंस एंड द प्रोडक्ट्स आर इवन सपोर्टिंग देम फर्दर, and the biggest confusion now is happening ki doctors like you are also challenging other doctors in the field, right? So where would a common man who wants to be healthy have a really good, again going back to the same thing, a good gut health and also build a body, करे कैसे? मैं कुछ बोलते नहीं, मेरा बस यही कहना होता है कि यू हैव सीन ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डॉक्टर फॉर योर मेडिकल कंडीशन,
हैव यू एवर इम्प्रूव्ड आफ्टर सीइंग देम? नो। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा है? आप उनको सुनो जो कुछ उल्टा बोल रहा है, क्योंकि जो सीधा लगता है उससे तो कुछ भी सीधा नहीं हो रहा आपका। तो जो उल्टा लग रहा है सुनने में, हो सकता है वही सीधा करे आपको, राइट? तो वैसे लोग आते हैं और ठीक होते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा ये कहना, मेरा बस ये पॉइंट है कि आप अगर बीमार हो तो आप मुझे सुनो। हेल्दी तो मत सुनो यार, इग्नोर करो, बोलो पागल है ये आप। हेल्दी लोगों को सुनना ही नहीं चाहिए मुझे। एक सफर समझेगा मेरे इंपॉर्टेंस को कि मैं क्या दे रहा हूँ सोसाइटी। हेल्दी लोग से मैं डील भी नहीं करता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट डील करने बैठा। मेरे पास हेल्दी लोग नहीं आते ना कि सर मुझे परफॉर्मेंस बढ़ाना है, मुझे स्टेमिना बढ़ाना है, एंड्योरेंस बढ़ाना है। नहीं, वो खुश है उतने ही में कि मैं ओबीज नहीं हूँ, हाइपरटेंशन नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है। डॉक्टर से कोई मतलब नहीं है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में उसी पेशेंट्स का मतलब होता है जो पेशेंट बीमार है सीरियसली, और बहुत पिल्स खा रहे हैं, परेशान है, साइड इफेक्ट्स भी मिल रहा है पॉलीफार्मेसी का, और साथ मेडिकल कंडीशन का तो है ही साइड इफेक्ट है। तो वैसे लोग अगर सुनते हैं तो उनको बेनिफिट होता है। तो उस समय डॉक्टर क्यों नहीं बोलते कि हाँ डॉक्टर किशले की डाइट से ये रिजल्ट मिल रहा है? कोई मुझे प्रमोट नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ। किसी डॉक्टर के रेफरेंस से मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आता। मेरे पास सारे पेशेंट्स मेरे क्रेडिबिलिटी की वजह से आते हैं। जबकि जानते हैं लोग कि डॉक्टर किशले के पास मैं अपने पेशेंट्स को भेज सकता हूँ, लेकिन नहीं भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि मैं बोलूँगा ही नहीं कि हाँ आप मुझे भेजोगे तो मैं आपको इतने शेयर दूंगा। मैं उस तरह के कभी कंडीशन रखता भी नहीं हूँ किसी के साथ, क्योंकि आप बाकी डॉक्टर्स को देखोगे तो सारे का ऐसे ही चल रहा है, एक्सचेंज है, ट्रांजेक्शनल है सारा कुछ, कि हाँ मैं इतना पेशेंट भेजूंगा तुम्हें तो तुम मुझे इतना इंसेंटिव देना। मैं उसका काम ही नहीं करता हूँ। मैं किसी डॉक्टर से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जो बीमार होता है मैं उनसे बात करता हूँ। डॉक्टर भी अगर बीमार होगा तो मेरे से वो बात करेगा तो मैं बात करूँगा, क्योंकि डॉक्टर जो है ईगो बहुत होता है डॉक्टर के अंदर। उनको ऐसा लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, हमने डिग्री ली है, हम डीएम है, हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होता है, आप वही काम करो ना। आप न्यूट्रिशन पे क्यों बात करते हो? क्योंकि आपका खुद का पेट निकला और आपको खुद डायबिटीज़ है। जितने भी आप डॉक्टर्स देखते हो ना हॉस्पिटल में, वो खुद पॉलीफार्मेसी का है जी। तो भी आप डॉक्टर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने कहा था कि डॉक्टर्स आर ड्रग डीलर्स। हाँ, ड्रग डीलर्स ही है वो ना। इससे बेहतर कोई टर्म है तो आप दो, मैं यूज़ अब से वही करूँगा, अगर ये इनफ नहीं हो रहा है उनको एक्सप्लेन करने के लिए तो। क्योंकि वो वही है, क्योंकि आपके पास पेशेंट जा रहा है, कंप्लेंट्स रखता है, और आप सीधे पिल्स लिखना शुरू कर देते हो, प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हो। कुछ सुनते ही नहीं हो डाइट के बारे में, कुछ पूछते ही नहीं हो उनसे क्या खाते हो नहीं खाते हो, बाकी लाइफ स्टाइल फैक्टर्स क्या है, कुछ आप बात ही नहीं करते हो, टाइम देते ही नहीं हो। फिर डॉक्टर्स के पास एक और एक्सक्यूज़ होता है कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम 5 मिनट से ज़्यादा दे ही नहीं सकते किसी पेशेंट को टाइम। तो मैं कहता हूँ फिर सिस्टम से निकलो, और एक्चुअली तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मेरी तरह सिस्टम से निकलो और देन काम करो। तो उसके लिए भी कॉम्पिटेंस नहीं है आपके पास, वो काम आप कर नहीं पाओगे। तो सिस्टम बेसिकली आप इसलिए बन के रह गए हो कि सिस्टम जो बोलेगा हम वही काम करेंगे, और उसी गलत तरीके से करेंगे, तभी हम अपने घर को चला पाएंगे, राइट? क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हो मेरी तरह, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो, कॉम्पिटेंट नहीं हो मेरी। इसलिए आप सिस्टम में रहते हो, उसके स्लेव बन करके, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूँगा। बट आप डॉक्टर्स को भी क्लेम कर रहे हो, देन देर आर न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो हु क्लेम और यू नो इन्फ्लुएंसर्स आजकल जो there were a lot of those you know rings and measurement machines and they say कि ये खाने से देखो मैंने आलू खाया मेरा इंसुलिन नहीं स्पाइक हुआ, बट मैंने उस टाइम पे पनीर खा लिया था तो इंसुलिन स्पाइक हो गया था। एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आपने फिर से बोला कि वो शॉर्ट पहन के जो आपको ज्ञान बांट रहा है आप उनको फॉलो मत करिए। तो आप किसको पहले तो रेफर कर रहे थे एंड व्हाट मेड यू से? एक्चुअली सच इनक्रेडिबल पीपल आर अ डाइम अ डजन ऑन द सोशल मीडिया। तो आप किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई यही है शॉर्ट पैंट वाला, क्योंकि सारे शॉर्ट पैंट वाले ही हैं, ताकि और जब आप उनको चैलेंज करते हो तो वो निकल जाता है वहाँ से। और इसलिए सारे लोग ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी में आते हैं मेरे भी। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस स्पेस में मेरी जैसी बातें कर रहा है, कोई नहीं है। मैं अपने आप में अकेला हूँ जो मेरी तरह जो बता रहा है, तो मैं एक्सक्लूसिव मानता हूँ खुद को। तो इसलिए मैं सभी को उसी कैटेगरी में रखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे शॉर्ट पैंट हुआ। सारे शॉर्ट पैंट वाले ही हैं, किसी को कुछ नहीं आता है समझ में। सो चलो मान लिया किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, आप रेड मीट को इतना प्रमोट करते हैं, बट WHO के हिसाब से जो अगेन मैं जब रिसर्च कर रही थी आई केम अक्रॉस दैट रेड मीट लीड्स टू यू नो कोलेस्ट्रॉल एंड देन लीड्स टू हार्ट अटैक बिकॉज प्रोबेबली इट इज कार्सिनोजन प्रोबेबली बिकॉज इट इज कार्सिनोजन। सो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके? पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल डजंट कॉज हार्ट डिजीज,
So this is what we have all known कि cholesterol blocks arteries block हो रही है तो of course heart attack आ रहा है. This is what has been propagated over the years, but this is not correct. This is complete lie, bull-faced lie. कोलेस्ट्रॉल को ब्लेम इसलिए किया गया क्योंकि शुगर इंडस्ट्री ने पे किया था फार्मा इंडस्ट्री को, राइट, कि तुम एक कोलेस्ट्रॉल को इससे विलेन बनाओ और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन हम लाएंगे. देन फार्मा इंडस्ट्री कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन लाई, स्टैटिन्स. और शुगर को ब्लेम मत करो, शुगर इंडस्ट्री भी ग्रो की उसके बाद, और सैचुरेटेड फैट को ब्लेम करके, क्योंकि सैचुरेटेड फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो वो भी सही नहीं है एक्चुअली. इस सैचुरेटेड फैट खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता किसी को. कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट कंपोनेंट है, सैचुरेटेड फैट डिफरेंट कंपोनेंट है. कोलेस्ट्रॉल लिपिड नहीं है, फैट नहीं आएंगी. कोलेस्ट्रॉल सैचुरेटेड फैट है, कोलेस्ट्रॉल. तो सैचुरेटेड फैट को खाकर आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ सकता है, राइट? कोलेस्ट्रॉल को आप खाओगे तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना. तो सैचुरेटेड फैट को खा के आप कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है. इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि सैचुरेटेड फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. डाइटरी कोलेस्ट्रॉल खा करके आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लेकिन सैचुरेटेड फैट को आपने क्यों ब्लेम किया? क्योंकि शुगर को खिलाना था. डाइट में फैट होता है, कार्ब्स होता है. तो आप जब तक फैट को ब्लेम नहीं करोगे, विलेन नहीं बनाओगे, तब तक आप शुगर के इंटेक को कैसे बढ़ाओगे? तो शुगर के इंटेक को बढ़ाया गया और फैट को ब्लेम कर दिया कि सैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इसलिए शुगर का इंटेक बढ़ गया. कार्बोहाइड्रेट आ गया 60 to 70% हमारी डाइट में, और तब से हम बीमार हैं. और कोलेस्ट्रॉल को आप विलेन बना रहे हो. कोलेस्ट्रॉल से कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होता ही नहीं हार्ट डिजीज़. एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्रोसेस होता है ना हार्ट डिजीज़ का, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकेज, प्लाक फॉर्मेशन, वो तब होता है जब आपकी एंडोथेलियम में इंजरी होती है. एंडोथेलियम जो इनर लाइनिंग होता है वेसल का, उसमें इंजरी होती है. तो जैसे वेसल है, ये वेसल का वॉल है आपका इंटरनल, तो ये डैमेज होता है पर ये डैमेज कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता. तो जब तक इंजरी नहीं होगी फर्स्ट प्लेस पे, आपका वो प्लाक का फॉर्मेशन स्टार्ट ही नहीं होगा कभी. तो इंजरी किससे हो रही है? हाइपरटेंशन से, एक्सेस ब्लड शुगर से. और आप बंद क्या करा रहे हो? ब्लेम किसको कर रहे हो? कोलेस्ट्रॉल. कोई मतलब नहीं बनता इसका. तो आप डायबिटिक पेशेंट्स का आप देखोगे क्यों उन्हें हार्ट डिजीज़ होता है. इसलिए नहीं कि कोलेस्ट्रॉल उनका हाई है, इसलिए क्योंकि उनका शुगर कंट्रोल नहीं है. और फिजिकल डैमेज शुगर कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर कर रहा है. और किसी भी हाइपरटेंसिव डायबिटिक पेशेंट का ना ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, ना ही शुगर कंट्रोल होता है. कंट्रोल मीन्स नॉर्मल रेंज में नहीं रहता हम लोग कभी. तो सारा डैमेज उससे हो रहा है और आप कोलेस्ट्रॉल कम कर लो पेशेंट. तो मैं कहता हूँ आप इन दो चीज़ को फिक्स करो, जो प्राइमरी कॉज है एक्चुअली एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए. ये ट्रिगर करता है, उस प्रोसेस को इनिशिएट करता है. आप उसको वेल कंट्रोल नहीं रख रहे हो, नॉर्मल रेंज में नहीं रख रहे हो पेशेंट के, पर देन आप कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन कर रहे हो और उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा. इसीलिए सारे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन खाने के बाद भी सभी को हार्ट अटैक होता है, किसी की जान नहीं बचती. तो अगर आप इन दो चीज़ को फिक्स कर लेते हो डाइट से, जो आपका कंप्लीटली पॉसिबल है, एंटायरली पॉसिबल है. ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाता है, शुगर आपका नॉर्मल हो जाता है. उसके बाद जो ट्रिगर था, जो बेसिकली शुगर, एक्सेस शुगर और ब्लड प्रेशर, वो ठीक हो गया आपका. तो अब जब डैमेज ही नहीं होगा तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना है वो मैटर नहीं करता आपके लिए. समझ रहे हो बात को? क्योंकि फिजिकल डैमेज होना ज़रूरी है, तभी तो प्लाक बनेगा ना. और देन आप बोलते हो कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उसमें, हालांकि वो भी उस तरह से होता नहीं, राइट? क्योंकि वो ब्लड का पार्ट है. तो डेफिनेटली आपका ब्लड में अगर LDL मॉलिक्यूल है तो वो कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट बनेगा ही, प्लाक बनेगा, क्योंकि वो ब्लड का ही पार्ट है. और एथेरोस्क्लेरोसिस अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट का वो एक हील्ड स्टेज होता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट आपका हील कर गया और वो स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है वहाँ पर. तो उसके, क्योंकि ब्लड में LDL था और वो ब्लड क्लॉट कर गया, तो LDL तो रहेगा ही ना उस क्लॉट में, राइट? लेकिन वो क्लॉट बना क्यों? क्योंकि फिजिकल इंजरी हुई आपकी, और वो इंजरी ब्लड प्रेशर से आया, शुगर से आया. तो कोलेस्ट्रॉल कम करके आप कैसे उस प्रोसेस को रोक सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है. आप कॉमन सेंस आप अप्लाई करोगे ना, तो आप समझ जाओगे इस प्रोपेगेंडा को. अगर हम इंडियन फूड की बात करें तो एक हमारा मील होता है, उसमें आप सबसे पहले कौन सी चीज़ निकालना चाहोगे? विच इज़ यू से इट्स अ हार्ट, इट्स अ पॉइजन्स. सबसे पहले एक्चुअली मैं निकालना चाहूँगा फूड आइटम. इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम मैं बोलता हूँ वीट सबसे पहले मैं बोलूँगा निकालने को. वीट, ग्लूटेन जिसमें होता है, क्योंकि एंटायरली अगर मैं प्लांट्स तो बोलता ही हूँ हटाने को, तो प्लांट्स में तो सब कुछ आ गया, पब्लिक को भी समझ नहीं आएगा कि किसको पहले हटाए. तो मैं वीट बोलता हूँ, क्योंकि राइस और वीट ये आपका
स्टेपल फूड है हमारा। तो आप राइस खा सकते हो, अगर निकालना है किसी एक को तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ व्हीट बंद करने। And why is that? ग्लूटेन And how does that impact? Because gluten का भी एक प्रोपागेंडा बना डायरेक्टली हुआ है। कॉजेज लीकी गट। लीकी गट सुना होगा आपने सोशल मीडिया पे। और लीकी मीडिया, हाँ, वी आर फॉलोइंग सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी आजकल, तो सही बात है। तो लीकी गट की वजह से ही आपका सारा ऑटोइम्यून डिजीज होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिससे हम हशीमोटो थायरॉयडाइटिस होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आप सीएनएस में जाएंगे ब्रेन में तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो सारे ऑटोइम्यून डिजीज हैं, इवन स्किन के सोराइसिस, ये सारे डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लीकी गट की वजह से हो रहा है। और लीकी गट में एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कल्प्रिट्स होता है ये ग्लूटेन। तो आपको ग्लूटेन सबसे पहले बंद करना है। तो ग्लूटेन के लिए कोई टॉलरेंट नहीं होता, सभी लोग ग्लूटेन सेंसिटिव है। बट डिफरेंस ये है क्योंकि आपके पास जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, इसलिए आप शायद ग्लूटेन खाकर आप बीमार नहीं होगे। जो डायरेक्टली हम बोलते हैं ना, ग्लूटेन आपको अवॉइड कब करना चाहिए, जब आपको सीलियाक डिजीज, एकमात्र वही डिजीज है जिसमें ग्लूटेन स्ट्रिक्टली डॉक्टर बोलते हैं अवॉइड करने को। अदरवाइज बोलते हैं आपको सीलियाक नहीं है तो आप ग्लूटेन खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ये नहीं समझ रहा कि कॉमन डिनोमिनेटर आपका लीकी गट है सारे ऑटोइम्यून डिजीज का। तो आपका अगर लीकी गट है और लीकी गट ग्लूटेन से होता है तो आपको सारे ऑटोइम्यून डिजीज में ग्लूटेन को बंद कराना चाहिए, जो डॉक्टर्स नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ सीलियाक डिजीज में बंद कराता है। तो ग्लूटेन सबसे पहले आपको व्हीट बंद करना है। अब बोलोगे व्हीट को कैसे, व्हीट की जगह क्या खाएंगे? मैं बोलता हूँ मीट, राइट। व्हीट की जगह मीट खाना है आपको। इसलिए देखिए डिफरेंस यही होता है, मीट बेली आप देख सकते हो और व्हीट बेली तो हर जगह दिखता है। राइट। बेली आपका बाहर आता ही नहीं है कभी। जब भी आप मीट बेस्ड हो जाओगे ना, आप स्ट्रगल करोगे, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपकी बॉडी फैट गेन कर ही नहीं पाती है एक्सक्लूसिवली मीट बेस्ड डाइट पे। इम्पॉसिबल ही है। कभी ह्यूमन बॉडी फैट स्टोर नहीं करता है मीट खाकर, जब तक आप कार्ब्स नहीं खा रहे हैं उसके साथ। इम्पॉसिबल। और आप अगर मीट खाते हुए अगर आप फैट स्टोर कर रहे हो, इसका मतलब आप कार्ब्स खा रहे हो, तभी स्टोर हो रहा है फैट। क्योंकि फैट खाने से डायरेक्टली फैट डिपॉजिट नहीं होता। जब तक हार्मोन इंसुलिन आपका हाई नहीं होगा तब तक आपका फैट स्टोर नहीं होगा। तो डायरेक्टली डाइटरी फैट से, क्योंकि आपका इंसुलिन हाई नहीं होता, इंसुलिन हाई होता है डाइटरी कार्ब से। तो आप अगर हाई फैट के साथ हाई कार्ब डाइट लोगे तो आप स्टोर करोगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ हाई कार्ब डाइट लोगे, फैट कम भी रखोगे आप, तो भी आप फैट स्टोर कर सकते हो, क्योंकि स्टिल इंसुलिन हाई है आपका, हाई कार्ब से आ रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाई फैट डाइट पे इंसुलिन हाई नहीं होता, इसलिए आप उस तरह से एबनॉर्मल वे में फैट को स्टोर नहीं कर पाते हो। जहाँ पे आप कहते हो कि पेशेंट ओवरवेट हो गया या ओबीज हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं कभी वेट गेन नहीं करता उससे, कभी नहीं। एक्टिविटी मेरी कम होती है, मैं वेट लूज करता हूँ, क्योंकि मसल मास ड्रॉप करने लगता है तो ओवरऑल बॉडी वेट कम हो जाता है मेरा। अदरवाइज वेट गेन का इशू तो है ही नहीं मेरे साथ, कभी नहीं। अगर हम न्यूट्रिशन वर्ल्ड की बात करें, बिकॉज वी बिन टॉकिंग सो मच अबाउट कार्ब्स, फाइबर्स, प्रोटीन, मीट्स, न्यूट्रिशन वर्ल्ड में तो हर साल कुछ नया चेंज आ रहा है। मतलब इतना फास्ट इवॉल्व हो रहा है, कभी शुगर को लेके, कभी गुड फैट्स की बात हो रही है, कभी हाई प्रोटीन की बात हो रही है, कभी गट माइक्रोबियम की बात हो रही है। इतना फास्ट तो मुझे लगता है ह्यूमन बॉडी भी नहीं इवॉल्व हो रहा है। सो हाउ डू वी know what to follow and what not to follow? Again that comes to whether you are sick or not. If you are sick, then stick around with How do you family. define sick here? Sick here means any problem if you have, means if you have bloating or even brain fog, you poor concentration, lack of focus. These are very prevalent actually. These things are very prevalent nowadays. आप देखोगे फोकस नहीं है, lack of concentration है, Right. मतलब वो अलर्टनेस लेवल नहीं है ना। कब रिएक्ट करना है किस चीज़ को लेकर के, वो है नहीं। जैसे कुछ भी आ रहा है तो मैं बहुत अलर्ट हो जाता हूँ, कुछ है मेरे अराउंड, वो उतने सेंसिटिव नहीं है। डल के तरह थोड़े होते हैं, वो स्टिमुलस आप दोगे भी तो लगे यार ठीक है, उनके क्या हो गया अचानक से। आप कितनी जल्दी स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हो ना, वो आपके अलर्टनेस लेवल को बताता है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आपका जो रिएक्शन टाइम होता है स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्सीडेंट से आपको बचाने के लिए। तो आप कार ड्राइव कर रहे हो, किस वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ किसी को नहीं पता। एक्सीडेंट हो जाता है, समझ नहीं आता जब तक उसके साथ कोई और बंदा नहीं हो, और वो अगर जिंदा अगर है तो ही बता पाएगा कि किस वजह से हुआ था। तो जब भी आप ड्रंक होते हो आपका रिएक्शन टाइम इम्पेयर्ड हो जाता है, या फिर आप मेटाबॉलिकली सिक हो।
उसमें भी आपका रिएक्शन टाइम इम्पेयर्ड होता है, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच, कितना वो कंट्रोल एक होता है ना, कोऑर्डिनेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइविंग। तो वो सारा कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है लोगों का, इसकी वजह से ये सब होता है। क्लैरिटी नहीं है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, वो क्लियर नहीं है सब कुछ उनका, मतलब सब कुछ ये सो प्राइमरी आई आप बोल रहे हो कि ब्रेन फॉग है, कंसंट्रेशन इशू है, या नॉट एबल टू हैव गुड स्लीप इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर यू शुड नो कि आप सिकनेस की तरफ बढ़ रहे हो। डेफिनेटली आप पढ़ रहे हो सकता है आपको डायबिटीज ना हो अभी तक, हो सकता है ब्लड प्रेशर ना हो, राइट। बट ये सारे सिम्टम्स बता रहा है कि आप मेटाबॉलिकली सिक हो। या वाओ। सो अभी आजकल तो कंसंट्रेशन, फोकस, स्लीप तो रील्स देख देख कर भी हो गया बच्चों में। एवरीबडी इज गेटिंग ब्रेन फॉग्ड। या सो हाउ वुड यू कनेक्ट दीज टू? their diet is also very poor at the same time, ओके। है ना। तो डाइट ही अल्टीमेटली, आप बोलते हैं, मैं जनरली मैं किसी से भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार पहले तो मैं स्पेक्स नहीं लगा होता, अब तो मैं स्पेक्स यूज़ कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ न्यूट्रिशन बहुत कम है तुम्हारा साथ में, वो भी एक फैक्टर है। सिर्फ स्क्रीन टाइम बढ़ने से चश्मा नहीं लगता किसी को, इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। आज की डेट में सारे लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, क्योंकि हर लोग वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। आप कोई अलग से नहीं, ये अलग से बैठे हो कि आप ही बस करते हो ये काम। हर लोगों का डेस्क जॉब है, और सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा आप सभी लोग करते हैं, हम सभी कर रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम मेरा भी बहुत ज़्यादा है, मैं दिन भर मोबाइल पे ही करता रहता हूँ काम कुछ कुछ, क्योंकि मैं तो हूँ ही डिजिटल डाइट डॉक्टर, मुझे तो सब कुछ डिजिटल ही करना है। मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, रात को भी मैं मोबाइल देखता हूँ, तो मुझे तो नहीं लग रहा चश्मा। तो चश्मा प्रॉब्लम, चश्मे का लगना इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है स्क्रीन टाइम के साथ। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम की वजह से चश्मा नहीं लगता किसी को। सो एक और चीज़ है, पहले के लोग तो 3-4 घंटा सोकर भी बहुत फ्रेश रहते थे। अब बोलते हैं 7 आवर्स स्लीप, 8 आवर्स स्लीप इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर यू टू रिवर्स ऑल योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट? डज इट रियली वर्क? आप, योर क्वालिटी ऑफ स्लीप इज गुड और नॉट, यू हैव टू सी दैट फर्स्ट। आप अगर आपका एग्जॉशन लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर आप काम ऐसा करते हो जिससे आप थकते हो बहुत ज़्यादा, देन योर स्लीप रिक्वायरमेंट विल गो अप डेफिनेटली। ओके। ठीक है, बट आज की डेट में मैक्सिमम लोग सेडेंटरीज, बट उनका स्लीप रिक्वायरमेंट ज़्यादा है फिर भी। क्यों? क्योंकि उनकी स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, तो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप उनका बढ़ जाता है, क्योंकि वो 8 घंटे सोकर भी फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं। राइट। तो वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप डायरेक्टली स्लीप की ड्यूरेशन को बढ़ाकर आप उनको ठीक नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे ठीक है तुम 10 घंटे सो आपसे, उसके बाद भी उनकी हालत वही रहेगी। तो वहाँ पे इशू यही है कि आप जब तक उनकी डाइट को ठीक नहीं करोगे, उनका मेटाबॉलिज्म जब तक ठीक नहीं होगा, उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। और जब तक स्लीप क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, स्लीप ड्यूरेशन को बढ़ाकर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा उनका। तो इसलिए वो सोएंगे 5 से 6 घंटा, अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप लेंगे तो वो 5 से 6 घंटे में ही फ्रेश होंगे और उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फिर उनको एक्स्ट्रा स्लीप की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मुझे नैप, डे टाइम में नैप की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको भी नहीं पड़ेगी। और डे टाइम में नैप अगर कोई ले भी रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। आप रात में 5 से 6 घंटे सोकर अगर आधे घंटे के लिए नैप लेते हो, मैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं मानता, क्योंकि आप लंच लेते हो, थोड़ा सा एक वो आता है एक लंच के बाद थोड़ी देर के लिए एक, सो इट्स ओके टू डू। या वो चलेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि रात की स्लीप आपकी अच्छी नहीं है, और रात की स्लीप अच्छी नहीं होने की वजह से अगर नैप आपको हो रहा है तो फिर नैप आ रहा है, और वो भी नैप डिपेंड करता है ना कितने टाइम के लिए आप सो रहे हो। 2 घंटे के लिए नींद आ रही है तो वो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। यू वांट वाटर समथिंग? आप पानी भी नहीं पीते हो? मैं आज मॉर्निंग में पता है आपको पानी पिया ही नहीं हूँ, बट हाउ डू यू मैनेज विदाउट दैट? थर्स्ट नहीं आता 1 मील पे। सो वो अगेन दिस 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, सब नॉनसेंस है वैसे। आपका सारा कुछ कॉन्टेक्चुअल है। अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड फूड है जिसमें सीड ऑयल्स यूज़ हो रहा है, वहाँ पे थर्स्ट इंक्रीज करता है आपका। तो आप मीट भी तो ऑयल में ही कुक करेंगे ना? मैं फैट में कुक करता हूँ, मटन पे जो फैट होता है ना, हाँ। मैं उसमें कुक करता हूँ। आई मीन मतलब क्या उसको डाल के वो खुद ही सेल्फ कुक? राइट, उसका मैं क्या करता हूँ कि आपका घी भी बना लेता हूँ उसका, मटन फैट का अलग से, ताकि वो एक रिजर्व भी फैट मेरे पास रहे, ताकि ऑमलेट भी जो मैं खाता हूँ उसी मटन फैट में खाता हूँ मैं। दैट साउंड्स और- एब्सोल्युटली डिफरेंट। अभी राइट, तक कभी सुना और अब आपका फैट का इंटेक बढ़ गया। अब फैट का इंटेक बढ़ गया तो जब भी फैट का ऑक्सीडेशन होगा ना, तो आप देखोगे, हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ते थे बचपन में। हाँ। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो। और प्रोडक्ट में क्या आता था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
फोटोसिंथेसिस में जस्ट उसका ऑपोजिट होता था। रिएक्टेंट साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होता था और इधर आता था कार्ब्स प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि पेड़ रिलीज करता है ऑक्सीजन, जैसा हम मानते हैं। पेड़ फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में आएगा, और हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। और वाटर बनता है, CO2 आता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो CO2 को आप एक्सेल करते हो, और जो वाटर है हमारा यूरिन से या स्वेट्स के थ्रू लूज होता है। तो वाटर क्रिएट हो रहा है हमारी बॉडी में, क्योंकि हम फैट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और वो हाइड्रेट करता है हमें, जिसे हम मेटाबॉलिक वाटर क्यों बोलते हैं। तो मुझे एक्सोजेनस वाटर की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आप खुद सोचो, कल रात का पानी पिया हुआ, अभी तक मैं पानी नहीं पिया हूँ। मतलब मैं सिर्फ ट्रू फास्ट पे नहीं हूँ, मैं ड्राई फास्ट पे भी हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 12 घंटा हो गया पानी पिए हुए। वाटर से मुझे हम यूजुअली देखते हैं जो हमारे एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ऑफ कोर्स दे प्रमोट यू 4 लीटर वाटर, 3 लीटर वाटर, बट आई थिंक दैट आल्सो फिल्स देयर बॉडी विद लॉट ऑफ वाटर, कि जब वो शूट पे जाते हैं they go under the process of cleaning their body so that उनके muscles fine दिखे. They go for detoxification of body as well. So is this a good thing to do? This is how it I think again means it depends on what diet you are. जैसे जनरली क्या होता है, कार्ब्स तो खाते ही हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो सारे लोग कार्ब्स खाते हैं। और कार्ब्स जब आप खाओगे ना तो वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, सबक्यूटेनियस लेवल पे। और इसलिए कार्ब्स खाने वालों का चेहरा आप देखोगे ना, पफी होता है हमेशा। सभी का नहीं होता है अगेन, फिर वहाँ पे भी डिपेंड करता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी। लेकिन जितने भी कार्ब्स खाते हैं, अगर पफीनेस है चेहरे पे, तो वो डेफिनेटली कार्ब्स की वजह से ही है। तो चेहरे पे जो पफीनेस है वो कम हो जाता है। आप अगर ओवरनाइट फास्ट भी कर लेते हो, या फिर 12 आवर्स या 18 आवर्स का फास्ट करते हो, आप देखोगे पफीनेस कम हो जाता है चेहरे का। सबसे ज़्यादा पफीनेस होता है जब वैसे लोग अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, सुबह में सबसे ज़्यादा हाई होता है उनका पफीनेस, correct. और वो फिर कम हो जाता है धीरे धीरे। तो वो सब पफीनेस ये बता रहा है कि बॉडी आपकी वाटर होल्ड कर रही है। So even the puffiness and the bloating जो होता है वो भी वाटर होल्ड की वजह से। एग्जैक्टली तो वाटर होल्ड कर रहा है, मतलब आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स, इंसुलिन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से वाटर रिटेंशन हो रहा है। तो इंसुलिन की वजह से ही वाटर रिटेंशन होता है। Okay. और इसलिए आप देखोगे जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं इंसुलिन थेरेपी पे, वो भी फेशियल पफिनेस उनके अंदर उसी इंसुलिन की वजह से, क्योंकि वो इंसुलिन थेरेपी पे है। और या आप इंसुलिन बाहर से लो, या बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है उसको बढ़ा दो, आपका आप खा के आएगा वो रिटेंशन। तो इसलिए एडिमा जिसे हम बोलते हैं क्लिनिकली, उससे मेडिकल में एडिमा बोलता है। जब भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है सबक्यूटेनियस लेवल पे, उसे हम बोलते हैं एडिमा। तो एडिमा होता है एक साइड इफेक्ट इंसुलिन थेरेपी का। और सिर्फ इंसुलिन थेरेपी का नहीं, वो हाइपर इंसुलिनीमिया का भी एक साइड इफेक्ट है एडिमा। तो अगर आप डाइट में कार्ब्स लेते हो और वाटर इंटेक कम कर देते हो शूट से पहले, है ना, टू लुक मोर वैस्कुलर मस्कुलर, तो उससे प्रॉब्लम भी हो जाती है। कई बार मसल में क्रैम्प्स भी आने लगता है। Right. I have also heard this. या क्योंकि आपने वाटर इंटेक कम कर दिया, वाटर इंटेक कम कर दिया, सॉल्ट इंटेक कम हो Definitely. गया है। हाँ, This is what I've heard people Yeah. saying. तो उससे बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप अगर डाइट से कार्ब्स को कम कर दो और वाटर इंटेक अपने थर्स्ट के अकॉर्डिंग आप कंटिन्यू रखो, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हो, आपकी बॉडी होल्ड ही नहीं करेगी, तो आपको क्यों उस तरह का मस्कुलर और वैस्कुलर हमेशा। बट डॉक्टर लो कार्ब लो शुगर जब लोग जाता है, इवन आई हैव डन वंस इन माय लाइफ, हेडेक होता था इनिशियली। इनिशियली होता है बस, या इनिशियली होता है वो, बस ट्रांजिशन के समय ही होता है। अनलेस यू आर कंप्लीटली फैट अडेप्टेड, यू विल फील like some symptoms like headache or even brain fog, over focus, ये सब रहेगा, ट्रांजिशन टाइम में रहेगा। बट और वो तब तक हो रहा है क्योंकि बॉडी एक काइंड ऑफ एक लॉक्ड है, जैम्ड है आप कह सकते हो, जिसमें बॉडी एंटायरली ना ही ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे ना ही प्रॉपर फैट को मेटाबोलाइज कर पा रही है, क्योंकि आपने कार्ब्स को कम किया है। जब भी आप कार्ब्स को कम करते हो ना, तो आपका रिलायंस जो होगा फैट के लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी पहले कार्ब्स से सारा एनर्जी निकाल रही थी, अब आप कार्ब्स को कम कर दिया। और जब कार्ब्स को आप कम करते हो तो एट द सेम टाइम फैट को वो डायरेक्टली अप रेगुलेट नहीं कर पाएगी उसी वक्त, थोड़ा तो टाइम लगेगा अडेप्ट होने में। तो वो अडेप्टेशन में, क्योंकि वो एनर्जी की क्राइसिस से एक डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। अब फैट क्यों बॉडी आपको ऑक्सीडाइज कर नहीं पा रही है, कार्ब्स को आपने कम कर दिया, तो आपको लो एनर्जी फील होता है इनिशियली। जैसे ही फैट को एफिशिएंटली आपकी बॉडी यूटिलाइज करना शुरू करती है आफ्टर लोअरिंग कार्ब्स, तो आपकी बॉडी में वैसा कोई लो कार्ब्स वाले जो भी आप सिम्टम बोलते हैं ना, लो कार्ब डाइट का ये साइड इफेक्ट है, वो आपको फील नहीं होता आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 वीक्स। क्विकली आप मुझे बताइए, ऐसा कोई डाइट है जिसको फॉलो करके, इफ देयर इज देन प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड द डाइट दैट कैन reduce the aging process.
एजिंग प्रोसेस मैं हालांकि मैं इन जनरली मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मैं बताता हूँ कि किस डाइट से आप एजिंग प्रोसेस को आप स्लो डाउन कर सकते हो। आपकी जिस डाइट में कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, राइट, और प्लांट बेस्ड डाइट नहीं होगा कार्ब्स, तो आपका ग्लूकोज स्पाइक होगा बार बार। और एक टर्म होता है ग्लाइकेशन, जिसमें आप HbA1c टेस्ट कराते हो ना, तो HbA1c भी एक ग्लाइकेशन का एक मार्कर है। तो RBC के साथ कितना ग्लूकोज अटैच्ड है वो HbA1c होता है। ओके तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज अटैच्ड होगा, जितने समय के लिए होगा, उतना HbA1c आपका हाई आएगा। तो ग्लूकोज का लेवल आपका ब्लड में ज़्यादा है तो आपका हेमोग्लोबिन HbA1c मतलब वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज उस हेमोग्लोबिन से अटैच है। तो अगर हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन से अगर ग्लूकोज अटैच्ड है तो ग्लाइकेशन हो रहा है, और हेमोग्लोबिन हमारा डैमेज भी हो रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम होगी, क्योंकि वो प्रोटीन का नेचर आप बदल रहे हो। तो प्रोटीन, वो हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। तो जब भी HbA1c बढ़ेगा तो पेशेंट को थकान कमज़ोरी क्यों लगती है? क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उस हेमोग्लोबिन की। तो उसी तरह से अदर प्रोटीन से भी अगर ग्लूकोज अटैच होगा, जिसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे प्रोटीन को मेजर नहीं कर सकते उस तरह से, क्योंकि टिश्यू के लेवल पे भी आपके कुछ बहुत सारे सेल्स प्रोटीन है और सारे से अटैच हो रहा है वो ग्लूकोज। तो सारा कॉम्प्लिकेशन ग्लाइकेशन का वो प्रॉब्लम है। तो ये एजिंग ही है एक तरह से। तो आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो एजिंग को। नॉर्मली जो एजिंग हो रही है ना, उससे ज़्यादा कहीं आप आगे हो, तो आगे आप खुद ही बढ़ रहे हो। तो इसको आप स्लो डाउन कर सकते हो, मतलब स्लो डाउन भी नहीं कर रहे हो आप, नेचुरली उसको उसी तरह रहने दो। आप स्लो डाउन टर्म यूज इसलिए करते हो क्योंकि आप में जो पहले डाइट ले रहे थे आप, तो उससे आप उसको एक्सेलरेट change कर, राइट, आप उसको वहां से स्लो डाउन किया आपने। नेचुरली आप पहले से ही अगर ये डाइट पे रहोगे तो आप ना ही उसको स्लो कर रहे हो ना ही एक्सेलरेट कर रहे हो, है ना। वो अपने अपना एक पाथ है, वो उसको फॉलो कर रहे हो आप सिंपली, जो एक एजिंग का एक प्रोसेस होता है। तो स्लो डाउन या रिवर्सल ऑफ एजिंग ये टर्म आता है इसलिए क्योंकि आपकी जो बेसलाइन जो पहले थी डाइट, वो ऐसी थी कि वो एक्सेलरेट कर रही थी एजिंग को। तो उसके लिए आप रिवर्सल टर्म यूज करते हो, क्योंकि आपने वहां से चेंज लाया ना। तो आप पहले 20 के होते हुए 30 के दिख रहे थे, तो अब 30 के होते हुए अब 20 के दिख रहे हो, तो इसलिए आप रिवर्सल टर्म यूज करते हो। लेकिन आप शुरू से ही अगर अच्छी डाइट पे होते तो आपको आपको लगता ही नहीं कि कुछ रिवर्स होता है। ये तो सब कुछ नेचुरल है, जैसा चल रहा था वैसे ही कोर्स है अपना। तो नेचुरल कोर्स को जब आप खराब करते हो तब आप रिवर्सल टर्म लाते हो। करेक्ट। सो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? ऐसे केस में यही करना चाहिए कि ग्लूकोज स्पाइक से ही आपका ग्लाइकेशन होता है, या फिर कॉन्स्टेंटली आपके ब्लड में शुगर हाई रहता है। तो ये जो ग्लूकोज का अटैचमेंट है ना, ये पैसिव है, मतलब इसके अटैचमेंट के लिए कोई प्रोटीन या कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती है। जिस समय आपका ग्लूकोज हाई होगा उस समय वो प्रोटीन से अटैच हो जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है बेसिकली। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको बढ़ता कब है ग्लूकोज ब्लड में? जब आप खाते हो। जब नहीं खाते हो तो वो मेंटेन है, एक 70 to 100 के रेंज मेंटेन रखता है, जैसा मैं बताता हूँ हमेशा, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज उतना ही बनाती है जितना बॉडी को ज़रूरत है, और 70 to 100 के बीच ही रहेगा हमेशा। वो बढ़ता ही तब है जब आप डाइटरी ग्लूकोज लेते हो, और जब बढ़ेगा तो वो प्रोटीन से अटैच होगा, जिसको हम ग्लाइकेशन बोलते हैं, और वो ग्लाइकेशन की वजह से एजिंग एक्सेलरेट होती है। तो आप उसको अगर अवॉइड कर रहे हो कार्ब्स नहीं खा के, तो मुझे ऐसा लगता है एंटी एजिंग डाइट आप बोल सकते हो, सो कॉल्ड एंटी एजिंग कार्निवोर डाइट। माइक्रोप्लास्टिक्स या फूड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स या केमिकल्स जो होते हैं, डज दैट इम्पैक्ट द मेटाबॉलिज्म? डेफिनेटली। एंड आई एम श्योर वी कांट इवन अवॉइड दैट बिकॉज सब कुछ ही आज प्लास्टिक में मिल रहा है। और ये जो फूड लेबलिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अक्सर कि आप लेबल देख के खरीदो, हेल्दी लिखा हुआ है, ज़ीरो शुगर लिखा हुआ है, नो शुगर लिखा हुआ है, गो ज़ीरो जैसे ब्रांड्स हैं जो शुगर फ्री आइसक्रीम्स प्रमोट कर रहे हैं। What is that you would want to say, especially in the context of does it impact the physiology of human body? सी, आप लेबल तो तब देखोगे ना जब आप पैकेज फूड खा लो। माई क्वेश्चन इज वाई आर यू ईटिंग पैकेज फूड? How much can you 100% avoid package food? क्यों नहीं? Question दोस्तों आप करोगे? वाई यू हैव टू डू कार्निवोर डाइट। That we get it, yeah. एनिमल फूड पैकेज में नहीं आता। ये रियल फूड का डेफिनेशन ये होता है, जो फूड आपका पैकेट में आ रहा है वो फूड नहीं है आपका। तो आप देखोगे ना, ये फूड फार्मर पॉपुलर हुआ इसकी वजह से ही लेबलिंग पढ़ाया है सबको, लेबलिंग करना। तो आप लेबल करना तो आप पढ़ना सिखा दिया कि भाई इमल्सिफायर ये वो कम होना चाहिए, शुगर कम का कंटेंट कम होना चाहिए,
बट आपने ये नहीं बताया कि ये पैकेज फूड के पीछे हमें भागना ही क्यों है। पैकेज फूड खाना नहीं है, आप पैकेज फूड को एज ए रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हो। कभी आप जर्नी पे निकल रहे हो या ट्रैवल करना है आपको, तो आप उसको उस समय यूज़ करो। आप अगर रेगुलर बेसिस पे कोई पैकेज फूड यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब आपकी लाइफ में रियल फूड नहीं है शायद, और रियल फूड मीट एंड एग्स होता है। तो मेरी लाइफ में तो नहीं आता ये सब। मैं तो लेबल पढ़ता ही नहीं हूँ किसी का, ना ही मैं कोई बॉटल में कोई सॉसेज या कोई केचप्स यूज़ करता हूँ, कुछ भी नहीं। इवन मसाले भी मैं पैकेट वाले यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैं कोई पैकेज फूड यूज़ नहीं करता हूँ, और ये तो पॉसिबल है। ये आप डिसीजन आपको लेना है अल्टीमेटली, और ये इतना हार्ड नहीं है एक्चुअली। आप क्यों लेबल के पीछे जाते हो और पढ़ते हो, उसमें इतना टाइम लगाते हो, मार्केट में इतना घूमते हो। एक बार खाओ, एक बार लाओ, बनाओ, फ्री हो जाओ यार खाने से। पूरे दिन किचन में रहना, खाने के बारे में सोचते रहना, पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ तुम इसी में, मतलब दिमाग तुम्हारा लग रहा है कि क्या खाना है अब, ये तो ब्रेकफास्ट था, लंच में क्या खाना है। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो खाना बनाने के ये सब में, प्रोसेस में। कम से कम टाइम देना है एक्चुअली। आप जब कम खाते हुए, कम टाइम देते हुए आप हेल्दी हो सकते हो, तो आप क्यों इतना इन्वेस्ट कर रहे हो। Great. I think, Dr. Kishla, this was indeed an intellectual conversation around the diet एक ह्यूमन को फॉलो करना चाहिए, एजिंग कैसे रिवर्स कर सकते हैं, मल्टीपल अदर डिसऑर्डर्स जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी आपने बात की, कोलेस्ट्रॉल की भी बात की, अपने डायबिटीज़ की भी बात की। कैसे ये सब चीज़ों को रिवर्स करके यूथफुलनेस ला सकते हैं बाय सिंपली फॉलोइंग अ कार्निवरस डाइट. So I think this is something which everyone should go. I mean, all the audiences must watch it till the end. And thank you very much for your valuable time to be part of Next Page.